اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میرے ابو امی سے لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر نکلے تھے اور اماں بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر ابا پر چیخ رہی تھی۔ میں باہر صحن میں بیٹھی ایف اے کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے پڑھائی سے اچٹ ہو گیا تھا۔ ابو اپنی لڑائی میں مجھے گھسیٹ لائے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج پھر مجھے منحوس کہہ کر گئے تھے۔ میرا ابا مجھے منحوس کہتا تو امی غصے میں آ کر کہتی، دعا کرو مر جائے آمنہ، ختم ہو جائے تمہاری زندگی سے آمنہ کا منحوس سایہ، اور میں باہر بیٹھی آمین کہہ دیتی۔ میں نے ایسی زندگی جی کر کرنا بھی کیا تھا۔ ایک دادی کی کسر ہی رہ جاتی۔ جیسے ہی ابو گھر سے باہر نکلتے وہ اپنی توپہ کا رخ امی کی جانب کر لیتی تھی اور ہمارا گھر پانی پت کا میدان بن جاتا۔ ارد گرد کے لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر ساس بہو کی لڑائی سے ایسے لطف اندوز ہوتے جیسے کوئی تھیٹر پر فلم چل رہی ہو۔ میں تنگ آ چکی تھی ان سب جھگڑوں سے۔ دادی امی کو کوسے دیتی اور کہتی، شہناز تم کو تو میں طلاق دلوا کر ہی رہوں گی، بہت عیش کر لی تم نے میرے بیٹے کی کمائی پر۔ پھر امی اور دادی میں تو میں شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی۔ مجھے دادی کی عیش والی بات پر بہت ہنسی آتی تھی۔ میں نے امی کو کبھی اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ عیش تو بہت دور کی بات ہے۔ امی میرے پاس آئیں تو میں اپنے خیالوں سے چونک گئی۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کی گرہ کھول کر ٹوڑے مڑے ہوئے کچھ پیسے تھمائے اور بولی، جا بیٹا دکان سے 1 کلو چاول لا دے، تیرے ابو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے امی سے پیسے پکڑے اور چادر سر پر اوڑھ کر باہر کی جانب چل دی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ امی ہر روز مجھ سے چاول کیوں منگواتی ہیں جب انہوں نے پکانے ہی نہیں ہوتے۔ امی پتہ نہیں ان چاولوں کا کیا کرتی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ گھر کے ٹینشن والے ماحول سے دور کرنے کے لیے باہر بھیجتی تھی تاکہ میں تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میری امی سادہ لوہ سی عورت تھی، سارا دن کام میں جٹی رہتی، مگر ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ ان کی واحد غلطی یہ تھی کہ وہ ابو کو بیٹا نہیں دے سکی تھی۔ میری پیدائش کے بعد کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی تھی کہ امی دوبارہ ماں ہی نہیں بن پائی تھی۔ اسی باعث ابو مجھے منحوس کہتے تھے۔ میرے ابو عیاش قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے گھر کے باہر اپنی دلچسپی کا بڑا سامان رکھا تھا۔ وہ گھر میں امی کے ساتھ ٹھیک رہتے، مگر جس دن دادی انہیں بیٹے کی فکر دلاتی تو وہ پریشان ہو جاتے۔ دادی ان سے کہتی، اے جمیل تیرے بعد ہماری نسل ختم ہو جائے گی، تو کب تک اس بے ثمر عورت کے پلو سے بند کر رہے گا؟ میں تو تیری دوسری شادی کر کے ہی رہوں گی۔ دادی کے پاس سے ابو اٹھ کر کمرے میں آ جاتے۔ کمرے میں جاتے تو امی کو جھڑکنے لگتے۔ پہلے امی خاموش رہا کرتی تھی، مگر اب وہ بھی بولنے لگی تھی۔ اس طرح لڑائی طول پکڑ جاتی۔ لڑائی کی وجہ سے میں شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہو چکی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو امی کو صحن میں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔ میں شدید گھبرا گئی۔ میں نے اپنا بیگ دروازے پر ہی پھینک دیا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی اور بولی، امی مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ روتی رہی اور بولی، میں اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ بھی نہیں رہا اس دنیا میں۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولی، بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ ابو تو ٹھیک ہے نا؟ امی میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، تیری دادی نے اپنی بھانجی کو بلا لیا ہے، اب تیرا باپ اس سے شادی کر کے ہم دونوں کو گھر سے نکال دے گا، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ بات تو واقعی پریشانی کی تھی۔ میں نے امی کو دلاسا دیا تو وہ ذرا سنبھل گئی۔ انہوں نے جلدی سے اپنے پلو سے پیسے نکالے اور بولی، جا کر 1 کلو چاول تو لا دے۔ مجھے اماں کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ کہاں تو ان کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا، اور اب جب کچھ سمجھنے کی حالت میں ہوئی ہیں تو ان کو پھر سے چاولوں کی پڑ گئی تھی۔ امی یہ چاول آپ اپنی ہونے والی سوتن کے لیے پکائیں گی کیا؟ میری بات سن کر وہ برہم ہو گئی تھی۔ میں ہنستی ہوئی ان سے پیسے لے کر دکان سے چاول لینے چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہر روز کی طرح آج بھی چاول نہیں بنیں گے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ امی 1 کلو چاول ہر روز منگواتی ہے، کہیں ذخیرہ اندوزی تو نہیں کرتی۔ پھر میں خود ہی اپنے اس خیال پر ہنس دیتی تھی۔ میں چاول لے کر واپس آئی تو دادی کی بھانجی آ چکی تھی۔ وہ ایک 27-28 سال کی لڑکی ہوگی، امی سے 8 سال چھوٹی۔ انہوں نے جدید تراش کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کا جاذب نظر سراپا دیکھ کر تو میں ان سے مرعوب ہوئے بھی نہ رہ سکی تھی۔ میں جانچتی نظروں سے اپنی امی کو دیکھا تو امی بالکل ہی بجھی ہوئی سی تھی۔ زرد چہرہ، 4 سال پرانا لباس، وہ سائرہ باجی کے سامنے بالکل ہی پھیکی پڑ گئی تھی۔ مجھے امی پر بہت ترس آیا۔ میں نے ابو کو دیکھا، وہ بھی چہک رہے تھے۔ دادی بھی بہت خوش تھی۔ میں اپنی امی کی حالت سمجھ سکتی تھی۔
थी। हम सब ने मिलकर खाना खाया था। दादी हर चीज सबसे पहले सायरा बाजी को पेश कर रही थी। अब्बू भी पीछे चले जा रहे थे। मैं और अम्मी तो उनको देखते चले गए। ऐसा लगता था कि हम वहाँ मौजूद ही नहीं थी। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे मालूम था आज सारी रात मेरी अम्मी रोने वाली थी। सुबह हुई तो अम्मी मेरे पास आई और बोली, आज तुम कॉलेज ना जाओ, हम बाजार जाएंगे, मैंने कुछ खरीदारी करनी है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, अम्मी आज आप सायरा बाजी के खौफ से शॉपिंग करने जा रही हैं। मेरे कहने पर चलती तो आज ये हालात ही पैदा ना होते। अम्मी गमज़दा सी होकर रह गई थी। अम्मी ने अपनी साथ के लिए पहली बार अब्बू से रकम का तकाजा किया था। अब्बू ने अम्मी को अच्छे खासे पैसे दे दिए थे। पता नहीं अब्बू किस नवाजिश के पीछे अम्मी की कदर छुपी हुई थी, या वो सायरा बाजी की आमद पर इतने खुश थे कि उन्हें पैसों की परवाह ही ना हुई थी। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार गई। मैंने अम्मी को अच्छे अच्छे 5 जोड़े दिला दिए थे, एक नया जूता भी। अम्मी वापसी पर वो कपड़े दर्जी को दे आई थी। हम जब लौट कर घर आए तो दादी अपने कमरे में बैठी तिलावत कुरान पाक कर रही थी, जबकि अब्बू सायरा बाजी के साथ महवे गुफ्तगू थे। अम्मी की सारी खुशी मान पड़ गई। अम्मी तन फन करती चली गई थी। अब वो भी अम्मी के पीछे ही गए थे। सायरा बाजी के पास बैठकर फैशन और मेकअप की बातें करने लगी। अम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि मैं सायरा बाजी को अपने साथ मसरूफ रखा करूं, वो तुम्हारे अब्बू के साथ ना बैठा करे। घर में अजीब सा तनाव था। दादी सारा दिन सायरा बाजी को अब्बू के नजदीक करने के बहाने ढूंढती, जबकि बाजी तो खुद अब्बू के पीछे पीछे थी। इधर अम्मी अलहदा जतन करती। अब्बू मनमोजी से थे। मैंने गौर किया कि वो सायरा बाजी के तमाम तर हुस्न के बावजूद कभी कभार ही बात करते थे। अम्मी भी अपने कपड़े पहनती, रोज कंघी करती, क्रीम लगाती। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। जब दादी मुझसे मुखातिब हुई, आमना खाना खाकर सामने वाली दुकान से 1 किलो चावल तो ले आना, तुम्हारे अब्बू बहुत शौक से खाते हैं। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा और बोली, दादी आपने फिर अम्मी वाला कारोबार शुरू करने का सोच लिया है क्या? सब ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। अब्बू बोले, क्या मतलब? मैं सारी बात बताने वाली थी। अम्मी की तरह मतलब अम्मी मुझे दुकान पर। मैंने बात करते करते अम्मी की जानिब देखा तो वो नफी में सर हिला रही थी। उनकी आंखें भी खौफजदा सी लग रही थी। मुझे लगा मुझे अम्मी की बात सबके सामने नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मैंने बात बदल डाली। अम्मी जब भी मुझे दुकान पर भेजकर जब कोई चीज मंगवाती हैं तो मुझे भी पैसे देती हैं। हुआ ना कारोबार? अब्बू हंस पड़े थे। खैर उस दिन दादी ने जब चावल मंगवाए तो हमारे घर में उस दिन सच में चावल पके थे, जो कि मैंने बहुत शौक से खाए थे। अब काफी दिन सुकून से गुजर गए थे, लेकिन दादी की फिर रग फड़कने लगी थी। वह उठते बैठते अब्बू को याद दिलाती थी कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। दादी अम्मी को कोसने देने लगती। अब वो साफ अल्फाज में अब्बू को कहती थी, तुम हामी भरो तो सायरा के साथ 4 बोल पढ़वा कर तुम्हारा घर आबाद कर दूं। अब्बू कहते, अम्मा मेरा घर तो पहले से ही आबाद है, लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन कॉलेज से वापस आई तो अम्मी कमरे में अंधेरा करके लेटे देखा। वो सारा कतार रो रही थी। मेरा दिल घबरा गया। मैंने अम्मी के गले लगकर उन्हें चुप करवाया, तसल्ली दी, फिर उनसे पूछा, मुझे सारा माजरा बताएं कि क्या हुआ है। अम्मी बोली, आमना तुम दुकान से मुझे 1 किलो चावल ला दो, फिर बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से चावल ले आई थी। अम्मी कभी भी खुद चावल लेने नहीं गई थी, वो मुझसे ही मंगवाती थी, और मंगवाती भी पूरी राजदारी में थी। मुझे कहती, कॉलेज वाला बस्ता ले जाओ, उसमें चावल छुपा कर ले आना। अगर कोई पूछे तो कह देना कि दुकान से कॉपी या कोई किताब लेने गई थी। मैंने वापस आकर अम्मी से रोने की वजह पूछी तो वो बोली, तुम्हारी दादी ने उससे कहा है कि मैं तुम्हारे अब्बू का कमरा छोड़कर तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊं। वहाँ वो सायरा को दुल्हन बनाकर लाएंगी। मैंने पूछा, तो अब आप क्या करेंगी? तुम्हारे अब्बू से राय मांगूंगी। अगर वो कहेंगे कि अम्मा की बात मान लो तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर शदीद खौफजदा हो गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी अपने कौल की पक्की थी। उन्होंने जब भी कोई फैसला लिया था उस पर कायम रही थी। मैं सारा दिन दुआएं मांगती रही थी कि काश अब्बू अम्मी का साथ दे दे। इस बात के चांस तो बहुत कम थे, मगर दुआ करने में क्या हर्ज थी। खैर अब्बू शाम को लौटे। वो बरामदे में बैठकर सायरा बाजी के साथ पूरे 2 घंटे गुफ्तगू करते रहे थे। अब्बू के चेहरे पर गुलाब खिल रहे थे। मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश उठी थी कि काश अब्बू अम्मी के साथ भी ऐसे ही खुश होकर गुफ्तगू करे। फिर अब्बू उठकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि पता नहीं आज अब्बू अम्मी की किस्मत का क्या फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अम्मी मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं समझ गई थी, अम्मी मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने अपना फैसला सुना दिया था। तब मेरी अम्मी मुझसे जुदा होकर बोली, अरे पगली, आज तो तेरे अब्बू ने मेरा मान रख लिया है। उन्होंने मुझे मेरी नजरों में मोतबर कर दिया है। मैंने
उनको तुम्हारी दादी की बात बताई तो वो बोले, अम्मा का तो दिमाग चल गया है, तुम हरगिज परेशान मत हुआ करो। मैं खुशी से झूम उठी थी, मेरे दिल से मनोबोझ उतर गया, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी थी। इस वाक़ये के कुछ ही दिन के बाद अब्बू सायरा को शॉपिंग करवाने ले जाते थे, शहर की सैर को निकल जाते थे। इधर अम्मी सूख सूख कर कांटा होती जा रही थी। अम्मी की जिंदगी अब तो सारा दिन अब्बू की जासूसी करते गुजरती थी या फिर मुझे चावल लाने के लिए भेजने में। अब हालात मजीद गंभीर हो चुके थे। अब तो सायरा बाजी ने साफ अल्फाज में दादी से कह दिया था, जमील ने अगले जुमे अगर मुझसे निकाह ना किया तो मैं वापस चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं इंतजार में बैठी रहूंगी। सायरा बाजी की बात सुनकर दादी बहुत परेशान हो गई थी। वो इसीलिए अम्मी की दुश्मन बन चुकी थी। वो इतवार का दिन था, मैं घर पर ही थी। दादी सुबह से अम्मी के साथ चोंच लड़ा रही थी। अम्मी अपने काम निपटा कर कमरे में जाकर लेट गई तो दादी जुबानी कलामी अम्मी को वार्निंग देती रही थी कि जमील का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कमरे से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से भी निकलवा दूंगी। अम्मी कुछ ना बोली तो दादी कमरे में घुसकर अम्मी का सामान कमरे से बाहर फेंकने लगी थी। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मैं अम्मी के कमरे में चली गई और अम्मी पर ही गुस्सा करने लगी कि वो दादी को उनकी हद में क्यों नहीं रखती। अम्मी ने मुझे कहा कि मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस मुझे 1 किलो चावल ला कर दो। मैं वहाँ से उठी, चादर ओढ़ी और चावल लेने के लिए निकल पड़ी। आज मैं चावल लेकर बैग में डालने लगी तो मुझे शॉपर फटता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन मुझे घर की फिक्र थी। मैंने ऐसे ही शॉपर बैग में डाल दिया था। आधा रास्ता गुजरा होगा कि मुझे बैग में कुछ उछलता हुआ महसूस हुआ। मुझे खौफ सा आया। जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक परिंदा पड़ा था। मेरी रूह तो कांप गई थी। मैंने वो परिंदा सड़क पर ही फेंक दिया और खुद घर जाने की बजाय अब्बू की वर्कशॉप पर चली गई थी। अब्बू की वर्कशॉप हमारे घर से नजदीक ही थी। वो मुझे देखकर परेशान हो गए। मैंने उनको अपने साथ घर चलने को कहा। वो बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़े थे। इधर अब्बू ने घर का दरवाजा खोला ही था कि अम्मी कटी शाह की तरह डोलती हुई बाहर गिरने वाली थी। जब अब्बू ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया था, अब्बू ने हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़ा और घर में दाखिल हो गए। दादी बिखरी शेरनी बनी हुई थी। वो चीखने लगी थी, जमील अभी और इसी वक्त शहनाज को तलाक दो, उसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है। दादी की बात सुनकर अब्बू बोले, माँ पहले यकीनन आपने ही कोई बदतमीजी की होगी। अब्बू की बात सुनकर तो दादी का पारा हाई हो गया। वो बोली, मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे। इस कमरे को मैंने सायरा के लिए सेट करना है, कल तुम दोनों का निकाह है। अब्बू हंस पड़े थे और बोले, अम्मा बस कर दे। फिर वो सायरा बाजी से बोले, देखिए सायरा, आप इस घर की मेहमान हैं। आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, अच्छा तो नहीं लगता, मगर मेरी अब ये मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे ये कहूँ कि अब आप हमारे घर से तशरीफ ले जाएं। मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगता कि आपकी वजह से हमारे घर का माहौल खराब हो। दादी चीख पड़ी थी, जमील तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? सायरा तुझे वारिस देगी और तुम्हें क्या चाहिए? अब्बू बोले, अम्मा अगर अल्लाह ने वारिस देना होगा तो मुझे शहनाज से ही दे देगा। अम्मा आज मैं आपसे एक बात बहुत ही साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि आप इस घर की मालकन हो। इस घर में जो कुछ भी है आप ही की मलकियत है। आप यहाँ मलका बनकर रहे। मैं, मेरी बीवी और बेटी आपकी खिदमत करेंगे, मगर आज के बाद अगर आपने हम में फसाद बर्पा करने की कोशिश की तो हम तीनों ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। उस दिन ही सायरा बाजी अपने घर वापस चली गई थी। दादी ने तो एहतजाजन खुद को कमरे में बंद कर रखा था, जबकि मैं अब्बू से शिकवा किए बिना नहीं रह पाई थी। मैं बोली, अब्बू आपने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ बहुत ज्यादती की है। काश आपने शुरू से ही हमें प्यार और इज्जत दी होती। अब्बू बोले, बेटा मैं अपनी माँ के आगे मजबूर था। मेरी अम्मा बहुत सख्त मिजाज की मालिक है। मैंने हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश की है। जब भी अम्मा का गुस्सा आता तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता, ताकि अम्मा मेरा गुस्सा देखकर अपना गुस्सा भूल जाए और वो तुम दोनों पर गुस्सा ना निकाले। अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, आपके इस गुस्से के हाथों आज मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। आप हमें दादी के गुस्से से इस तरह भी बचा सकते थे जिस तरह आज बचाया है। इस तरह कम अज कम मेरी माँ और मैं सुकून की जिंदगी तो गुजार लेती। अब्बू शर्मिंदा हो गए थे। उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए गलत तरीके का इंतखाब किया था। उन्हें बहुत पहले ही अपनी माँ को रोक लेना चाहिए था। मैंने तो अब्बू से गिले कर लिए थे, मगर अम्मी ने तो रोकना भी मुनासिब नहीं समझा था। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने अम्मी के शोहर के दिल में प्यार डाल दिया था। घर के हालात अब बहुत बेहतर हो गए थे। अब्बू अब हमें सैर करवाने के लिए भी ले जाते थे। एक दिन घर में कोई नहीं था। मैंने अम्मी से पूछ लिया, अम्मी आप हर रोज मुझसे चावल क्यों मंगवाती थी?
उस दिन चावलों में एक अध मरा हुआ परिंदा पड़ा था, जिसे देखकर मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। इतना तो मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी गलती दुकानदार से तो हो नहीं सकती कि वो चावलों की बजाय परिंदा दे दे। उसमें जरूर कोई राज छुपा है। अब मुझे बताइए वो परिंदा वहाँ क्या कर रहा था। अम्मी शदीद घबरा चुकी थी, मगर उनके पास अब सच बोलने के सिवा कोई चारा न था। वो बोली, जिस दुकानदार से तुम चावल लाती थी ना, उसके पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं। वो तावीज गढ़ने का काम करते हैं। मैंने इस दुकानदार से कहा था कि वो मेरे लिए भी एक तावीज ले लिया करे। उसने बताया कि बाबा 40 दिन तक 1 किलो चावलों पर दम करके देंगे, जो छत पर जाकर परिंदों को डाल देने हैं, और आखिरी दिन वो एक दम किया हुआ मुर्दा परिंदा देंगे जो सास को खिलाना होगा। उससे मेरी सास की जुबान बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। मगर बेटा, तुमने तो वो परिंदा रास्ते में ही फेंक दिया था, वरना मेरे 40 दिन पूरे हो जाते, फिर मेरे हालात और बेहतर हो जाते। इसलिए मैं तुम्हें उनसे चावल लेने के लिए भेज देती थी। देखो ना, इस तावीज की करामत से कैसे सब कुछ ठीक हो गया था। तुम्हारे अब्बू का दिल भी बदल गया और वो मेरी तरफ हो गए। अम्मी की मासूम सी बातें सुनकर मैं मुस्कुराती थी, मगर मेरा पूरा वजूद जादू का सुनकर काम गया था। मैं चादर लेकर उस दुकानदार के पास जा पहुंची थी। मैंने उसको खूब खरी खरी सुनाई और उससे कहा, तुम्हें डूब मरना चाहिए कि तुम लोगों को तबाही के रास्ते पर डालते हो, काले जादू करवा के देते हो। तो वो बोला, हम तो सादा लोग से बंदे हैं, खैर मानते हैं। मैंने बड़ी बाजी को कोई काला जादू नहीं करवा कर दिया। मैं तो खुद उनके मुंह से काले जादू का सुनकर परेशान हो गया था। मैंने तो बस उनसे इतना कहा था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 40 दिन तक अपने शोहर से लड़ना नहीं है और न ही सास से। आप खुद ही सोचें, अगर कोई औरत 40 दिन तक घर वालों से नहीं लड़ेगी तो घर वाले उससे क्यों लड़ेंगे? वो भी इंसान बन जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि तावीज से कुछ होता है या नहीं, मगर मैं दुकानदार की सोच से बहुत मुतासिर हुई थी। उसने कैसे अपनी मामला फहमी से सारे सूरत हाल को संभाला था। उसने अम्मी को कितनी गिरह की बात बताई थी। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अब्बू का दिल किसी तावीज से बदला या नहीं, मगर अम्मी के बेइंतहा प्यार, एसार और कुर्बानी की वजह से बदला था। अगर हर औरत अपनी जुबान बंद रखे, सब्र करे, तो उनके शोहर भी लड़ना छोड़ देंगे। छोटी छोटी बातों पर घर नहीं टूटेंगे और न ही सौतने लाई जाएंगी। इस वाक़े को जब 2 साल गुजर गए तो अल्लाह ने तमाम डॉक्टरी शक व शबाहत को खत्म कर दिया। यूँ हमारी खुशियाँ दुबाला हो गई थी।